Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in the continuing graph series that we have started on this particular channel, the question today we are going to solve is one of the most interesting questions in the application of DFS, that is mother vertex. So you might have heard about it. If you haven't, we will discuss it in detail in today's class. So mother vertex question क्या है? So question is very simple. Mother vertex, ठीक है? So in the whole tree or the graph that we are given, we have to find the vertex or a node from which we can reach to each and every child of that particular node or every node present in the graph, right? तो सबसे easy example लेता हूँ मैं इसका. Suppose मेरे पास ये 1 है. So tell me in the given question that what is the node or vertex from which you can reach to each and every node of the given graph, ठीक है? तो isn't this pretty obvious that 1 से मैं देखो from 1 can I go to 2? Yes bro, you can. From 2 you can go to 3. Okay, लाइन अच्छी सी बना लेता हूँ यार. From 1 you can go to 2. From 2 you can go, अभी भी अच्छी नहीं, ठीक है. 1 you can go to 2, 2 you can go to 3 obviously. Yes we can. क्या मैं 1 से 4 जा सकता हूँ? Yes. क्या 4 से 5? Yes. ठीक है. तो I can go from all the things, all the nodes that we are having. तो मेरा 1 जो है वो है mother vertex. तो मेरी 1 मदर वर्टेक्स है, राइट? सो इट इज़ प्रीटी मच क्लियर आई गेस, ठीक है. अब हम चेक करते हैं कि क्या मैं 4 से जा सकता हूँ, ठीक है. ये तो हमने चेक कर लिया, रेंडमली मैन्युअली देख लिया, ठीक है. अब मैं 4 से देखता हूँ, मैं 4 से कहाँ जा सकता हूँ? 4 से 5 पे गया, हाँ भाई गया. क्या 4 से 1 पे जा सकता हूँ? नो. क्या 4 से 1 पे ही नहीं जा सकता? तो आगे तो जा ही नहीं सकता. तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच क्लियर कि मदर वर्टेक्स क्या है, उसका मदर वर्टेक्स का रोल क्या रहने वाला है. मदर वर्टेक्स इज सिंपली द वर्टेक्स फ्रॉम विच वी कैन रीच टू ईच एंड एवरी नोड. मदर वर्टेक्स वी कैन रीच है वो टू each and every node, right? So this is the main role of the mother vertex. Now let me just get you through one more example. Suppose I am having an example 1, sorry बहुत ज़्यादा ही ऊपर हो गया, इसमें थोड़ा पता नहीं पड़ता है कभी कभी. 1 से 2 एंड यहाँ से 3, ठीक है. So suppose I started from 1, can I go to 2? Yes. Can I go to 3? No. From 3 can I go to 2? Yes. But from 2 can I go to 1? No. Right? So this is not having any mother vertex. If it is not having any mother vertex, you simply have to return -1 or something, right? तो ये हमें रिटर्न करना है ना. और उसके अलावा जैसे 1 से 2, 2 से 3, तो इसमें 1 मदर वर्टेक्स है. इट इज़ प्रीटी मच क्लियर. 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, ठीक है. पर अब ये हम उसको कैसे दिखाएंगे? व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द कोड दैट वी हैव टू राइट, राइट? So we will discuss about it in detail, but before going to that part I would like to mention about Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So Newton School is amazing edtech platform which helps you to build your career in tech specifically, right? It is having a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer, and after you've completed that 6 months course and you are a full stack developer, it is connected to a lot of companies which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed. From the salary that you are having from the company, from that you have to pay Newton School. So isn't this amazing? It is such an amazing opportunity that is being provided in the recent times, right? So let's head over to the Newton School's website. So this is the Newton School's website. They are having a lot of coding contests, they are having Launchpad, and it is connected to a lot of companies, right? Like Google, Zomato, MI, Byju's, Udaan, Meesho, Lenskart, Policy Bazaar, and lot more are out there which helps you to get placed. So this is how it works. So if you are interested in such an amazing opportunity, do enroll in it, guys. It is really special. So this was it for Newton School. Now coming back to our topic, that is mother vertex, right? तो इन द मदर वर्टेक्स व्हाट यू हैविंग इज के जैसे मुझे कोई दे रखा है ग्राफ, तो उसमें मुझे मदर वर्टेक्स फाइंड करनी है, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू, ठीक है. तो अब ये देखो, जो भी ग्राफ क्वेश्चन आता है ना, उसमें 2 चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए. या तो वो DFS से होगा या वो BFS से होगा. उसके अलावा हम अभी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कैसे पहुँचते हैं, वो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं. सो वी विल ऑल्सो सी अबाउट दैट. बट द मेन थिंग इज दैट हाउ वी हैव टू सी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कैसे जाएंगे. वो एक क्वेश्चन का सीरीज रहता है, 3 चीज़ रहती है, बट दैट क्वेश्चन आर प्रीटी मच क्लियर. मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है बिटवीन 2 पाथ्स. तो उनकी 3-4 क्रुस्कल्स, प्रेम्स, दिजिक्स्ट्रास, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. सो वही वाली जो लगती है, ठीक है.
तो फ्रॉम दैट यू हैव टू डू. बट कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन नहीं है तो दो ही चॉइसेस हमारे पास लेफ्ट होती है. आइदर वी हैव टू गो विद डीएफएस और बीएफएस. विद बोथ द थिंग्स वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट इट ओनली डिपेंड दैट हाउ ईजी दैट अप्रोच पर्टिकुलर दैट वी आर हैविंग इज, राइट. तो ईजी अप्रोच पे हमें जाना है, ठीक है. तो अभी हम डीएफएस देखेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ डीएफएस से, ठीक है. इसके बाद हम बीएफएस की कुछ एप्लीकेशन भी करने वाले हैं. एक हम बीएफएस का क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे आने वाले एक दो क्वेश्चन और हम बीएफएस के भी करेंगे. तो डीएफएस से हम ये क्वेश्चन करेंगे, बट डीएफएस से हम ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, ठीक है. सपोज आई एम गिवन अ क्वेश्चन दैट 4 से 5 है ना, 5 से 1 एंड 1 से 2 से 3, ठीक है. तो मैं 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ. सपोज आई स्टार्टेड विद 1, राइट. सपोज आई स्टार्टेड विद 1, तो 1 से मैं कहाँ गया, 1 से मैं 2 पे गया, 2 से मैं 3 पे गया, तो 1 विजिटेड हो गया, 2 विजिटेड हो गया, 3 विजिटेड हो गया, ठीक है. अब क्या मैं इसके आगे जा सकता हूँ? नहीं. तो आई हैव टू अप्लाई डीएफएस ऑन 4. तो 4 है, तो 4 विजिटेड हो गया और 5 विजिटेड हो गया, ठीक है. तब अब मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ मैं, द लॉजिक इज़ दैट कि मैं अगर पूरे ट्री पे डीएफएस लगाता हूँ, तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट जिसमें मैंने डीएफएस लगाई है, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है जिसमें मैंने डीएफएस लगाई है, तो देयर इज़ मोस्ट पॉसिबिलिटी कि उस एलिमेंट से मैं सारे एलिमेंट्स तक पहुँच सकता हूँ, राइट. यही चीज़ है, ठीक है. मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे सपोज आई एम हैविंग दिस, राइट. एंड मैंने फर्स्टली जैसे मैंने डीएफएस कॉल करी, तो मैंने डीएफएस कॉल करी 4 पे, ठीक है. तो डीएफएस कॉल मेरी 4 पे हुई है, ठीक है. द सर्कल है, जिस पे सर्कल है उसमें मेरा मतलब है मैंने डीएफएस कॉल करी है. तो 4 से 5 पे चला गया, 5 से 1 पे चला गया, 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 पे चला गया. क्या सारे मेरे विजिटेड हो गए? हाँ. तो आखिरी डीएफएस आपने किस पे लगाई थी? आखिरी डीएफएस लगाई थी मैंने 4 पे. 4 के बाद तो ये सारे इटरेटिवली कॉल हो रहे हैं. मेन डीएफएस मेरी 4 पे थी, ठीक है. तो आई विल रिटर्न 4, ठीक है. आई विल रिटर्न 4 एंड फ्रॉम दैट 4 आई विल चेक क्या मेरे सारे एलिमेंट्स वापस चेक करूंगा क्या मेरे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए. अगर मेरे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए देन 4 इज द मदर वर्टेक्स ऑफ ऑल, ठीक है. अभी भी समझ नहीं आया तो हम एक बार वापस देखते हैं. 4, ठीक है. अब मैं सपोज 1 पे लगा रहा हूँ, तो 1 पे लगाई मैंने, तो 1 से 1 पे विजिट हो गया, 2 पे विजिट हो गया, 3 पे विजिट. अब आगे कहीं जा नहीं सकता, तो अब 1 पे मेरी डीएफएस खत्म हो गई है, ठीक है. अब मैं वापस डीएफएस कॉल कर रहा हूँ मेरे मेन फंक्शन से मैंने वापस डीएफएस कॉल करी 4 पे. अब आखिरी डीएफएस कॉल हुई है मेरी 4 पे, तो 4 विजिटेड, 5 विजिटेड, सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो गए. तो अब मैं उस लूप से बाहर आ जाऊंगा. तो मेरी लास्ट डीएफएस कॉल किस पे थी? 4 पे. अब मैं अलग से वापस 4 पे डीएफएस कॉल करके चेक करूंगा क्या 4 से डीएफएस कॉल करने पे सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो रहे हैं. अगर 4 से डीएफएस कॉल करने पे सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो जाते हैं, दैट मीन्स दैट फ्रॉम द नोड 4 यू कैन रीच टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ एंड हेंस इट इज द मदर वर्टेक्स ऑफ योर ग्राफ. सो दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क विद दिस, ठीक है. अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ समझने में थोड़ी ट्रिकी है, आई नो, बट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट देन यू विल ईजिली ग्रास्प द थिंग, राइट. सो सपोज 1 से 2 से 3, राइट. ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था. सो फ्रॉम द सेम एग्जांपल सपोज आई स्टार्टेड विद 1, मैंने डीएफएस कॉल लगाई 1 पे, 1 विजिटेड, 2 विजिटेड. अब क्या मैं 2 से 3 पे जा सकता हूँ? हाँ, 3 विजिटेड, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, मेरे सारे नोड विजिटेड हो गए. लास्ट डीएफएस किस पे लगाई थी? 1 पे, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा और 1 मदर वर्टेक्स है. अब यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट कर देता हूँ ये, ठीक है. वापस डीएफएस लगाऊंगा 1 पे, ठीक है. वापस डीएफएस लगाऊंगा 1 पे डीएफएस लगाई, विजिटेड. क्या 1 से आगे जा सकता हूँ? नहीं, ठीक है. तो अब बचा हुआ मेरा क्या है? 3 पे डीएफएस लगाई, 3 विजिटेड हो गया. अब कोई नोड बचा नहीं, सारे विजिटेड हो गए. आखिरी डीएफएस किस पे लगाई थी? 3 पे, ठीक है. अब मैं 3 पे वापस डीएफएस लगा चेक करूँगा क्या 3 से सारे एलिमेंट्स विजिट हो रहे हैं. तो 3 से मैं 2 पे जा पा रहा हूँ. हाँ, तो ये 2 से 1 पे नहीं जा पा रहा. 2 से 1 पे नहीं जा पा रहा, तो सारे एलिमेंट विजिट नहीं हो रहे. इसका मतलब मदर वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करता इस ग्राफ में, राइट. सो ये ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन वापस दे देता हूँ. तो मुझे करना क्या है कि मुझे डीएफएस लगानी है सारे एलिमेंट्स पे, और उसके बाद आखिरी एलिमेंट जिसमें मैं डीएफएस लगा रहा हूँ, है ना, जिसकी हेल्प से मेरे सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो गए हैं, उसमें मुझे चेक करना है वापस से उस आखिरी एलिमेंट पे कि क्या उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट विजिट हो रहे हैं. अगर हो रहे होंगे देन बूम यू हैव गॉट द आंसर, और नहीं हो रहे होंगे तो मदर वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करती है. क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ पे डीएफएस लगा रहा हूँ, तो अगर उससे मेरे सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो रहे हैं, तो देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल बी द मदर इंडेक्स,
right? Mother vertex. So this is how it works. Let me just explain you with the help of code, उससे और थोड़ा समझ आ जाएगा. तो मदर वर्टेक्स में मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है उसका नोड. तो इंट मदर नाम दे देते हैं, ठीक है, मदर नाम दे देते हैं. एंड वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी इंट n, ये हमने दे दिया है. तो अब एक मुझे सबसे पहले विजिटेड तो बनाना ही पड़ेगा. इट इज़ लाइक मैं धर्म सिद्ध अधिकार. तो विजिटेड n कॉमा सबको ज़ीरो कर दिया विजिटेड मैंने, ठीक है, विजिटेड ज़ीरो कर दिया है. अब मुझे क्या करना है कि विजिटेड मैंने कर दिया, विजिटेड जो एरे है उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने. अब मुझे हर एलिमेंट पे जाके फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, है ना. अब मुझे चेक करना है कि इफ़ विजिटेड ऑफ i इज इक्वल्स टू 0, मतलब अभी विजिटेड नहीं है. अगर अभी मेरा विजिटेड नहीं है तब मुझे DFS कॉल करनी है. DFS में मुझे क्या पास करना है, एडजेसेंसी n, स्टार्ट तो i ही रहेगा, विजिटेड एरे पास करनी है. एंड ओके, दैट्स ऑल यू हैव टू पास. एंड इसके अलावा मुझे इंट लास्ट नोड भी एक चीज़ करनी है. तो लास्ट नोड इज इक्वल्स टू आई. लास्ट DFS किस पे लगाई है आपने, आई पे लगाई है, ठीक है, ये करके, है ना. अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने सब पे DFS लगा दी, मेरे पास लास्ट नोड आ गया है. अब लास्ट नोड पे मुझे DFS लगानी है, ठीक है. एडजेसेंसी ऑफ एडजेसेंसी नाम देना है n, लास्ट नोड और विजिटेड, ठीक है. और उसके बाद अब मुझे चेक करना है सारी की फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. इफ विजिटेड ऑफ i इज इक्वल टू 0, false. रिटर्न ट्रू, है ना. और उसमें मुझे करना क्या है, ओके. सो अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले विजिटेड नोड किया, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया. एक लास्ट नोड डिक्लेयर किया, उसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, है ना. इंट i से लेके n तक मैंने सब पे DFS लगाया है. DFS में जिस नोड पे मैंने आखिरी DFS कॉल करी है उसको स्टोर करता गया हूँ, ठीक है. अब जो आखिरी नोड है, इट इज़ ओनली द वायबल कैंडिडेट ऑफ बीइंग द मदर वर्टेक्स, राइट. तो उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट नोड को स्टोर कर लिया और सारे विजिटेड को वापस फॉल्स कर दिया, मैंने सबको अनविजिटेड कर दिया है. अब मैंने जो लास्ट नोड है उस पर DFS लगाई, ये चेक करने के लिए कि क्या उससे मैं सारे नोड्स तक पहुंच सकता हूं. अगर उसके बाद DFS के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कोई भी अगर मेरा विजिटेड है वो मतलब कोई भी नोड है वो अनविजिटेड है, मतलब वो मदर वर्टेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती. और अगर सारे विजिटेड हो गए तब तो मदर वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है. तब मुझे क्या कर देना है कि रिटर्न -1, यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स आपको समझाने के लिए किया था, और यहाँ पे लास्ट नोड मेरा मदर वर्टेक्स है. तो अब मुझे क्या करना है कि अब सिंपल DFS है, DFS का कोड तो अब आपके रगों में होगा, DFS का कोड तो राइट. तो DFS के कोड में हमारे कुछ स्पेशल है नहीं. तो void DFS वेक्टर ऑफ इंट एडजेसेंसी इंट n इंट स्टार्ट वेक्टर ऑफ इंट एंड विजिटेड, राइट. तो ये कर दिया है हमने. अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले उसको विजिटेड ट्रू करना है, ठीक है. विजिटेड ऑफ जिस एलिमेंट पे जा रहा हूँ उसको विजिटेड ट्रू करना है. उसके मुझे सारे दोस्त ढूंढने हैं. फॉर ऑटो आई इन एडजेसेंसी ऑफ स्टार्ट, इफ नॉट विजिटेड ऑफ स्टार्ट, अगर विजिटेड नहीं है तो DFS कॉल कर दो, एडजेसेंसी n i विजिटेड, ठीक है. सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. सो यही है DFS कॉल. तो DFS में मुझे सारे एलिमेंट जाने जो है उसको ट्रू कर देंगे और जो नहीं बचे उसको नहीं करेंगे. और
दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन राइट. तो मदर वर्टेक्स में क्या करना है, मुझे DFS कॉल करनी है. DFS कॉल में आखिरी एलिमेंट जिसमें मैं DFS लगा रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट वायबल कैंडिडेट टू बी अ मदर वर्टेक्स. एंड इफ इट इज़ मदर वर्टेक्स देन यू व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले लास्ट एलिमेंट ढूंढ लो, जिसके बाद सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो जाते हैं. सारे एलिमेंट्स को अनविजिटेड कर दो और लास्ट वाले एलिमेंट्स पे वापस DFS लगाओ. फिर उसके बाद विजिटेड एरे चेक करो कि क्या विजिटेड में कोई अनविजिटेड है, मतलब कोई नोड अभी तक अनविजिटेड है. अगर कोई नोड अनविजिटेड है देन देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मदर वर्टेक्स. और अगर सारे नोड विजिटेड हो गए हैं तो देर एग्जिस्ट अ मदर वर्टेक्स एंड दैट इज द लास्ट वन ओनली. So this was it for this video. I hope you like this explanation. So if you like the explanation, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also enroll to Newton School